Students, next exercise is 6.2 and topic is similarity of triangle. Two triangles are similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Then consider two triangles. Let the two triangles are ABC and PQR. In these two triangles, consider triangle ABC and triangle PQR. If corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, it means angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and angle A is equal to angle P. In this case, also their corresponding sides are proportional. Second is, we have considered two triangles in which corresponding angles are equal. It means angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and angle A is equal to angle P. So only if corresponding angles are equal, then we cannot say the triangles are similar, but second part is also applicable कि their corresponding sides are proportional. It means AB upon PQ. Their corresponding sides are AB and PQ. Their corresponding sides are proportional. Sides are proportional. It means AB upon PQ. AB upon PQ is equal to BC upon QR. BC upon QR is equal to AC upon PR. अगर दोनों क्राइटेरिया कहीं मैच होता है तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. There is an important theorem, basic proportionality theorem, or briefly it is known as BPT. It is also called Thales theorem. So this should be memorized. This should be remembered that BPT is also called Thales theorem. This is very important theorem and frequently asked in board exam. So what is Thales theorem or BPT? If a line drawn parallel to one side of a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are also divided in same ratio. So let ABC is a triangle and there is a line DE which is parallel to BC. There is a line DE which is parallel to BC intersecting AB and AC at distinct point D and E. तो अगर ये DE BC के पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है कि BC इज पैरेलल टू DE और DE इज पैरेलल टू BC. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे गिवन क्या क्या है वो फिगर देख करके हम बता देंगे. गिवन है अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल
ABC, और इस ABC में in which DE is parallel to BC, देन हमें क्या प्रूव करना है उसे भी लिखना चाहिए। टू प्रूव दिस लाइन्स other two sides are divided in same ratio, it means AD upon DB is equal to AE upon EC। तो हमें प्रूव करना है AD upon DB is equal to AE upon EC। इनको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लाइक इनको D को C से ज्वाइन करें एंड E को B से ज्वाइन करें। ऑल्सो हमें E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट इट बी EN, एंड D से AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट इट बी DN। नाउ कंस्ट्रक्शन को भी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC and BE, also draw DN perpendicular on AE, DN perpendicular on AE and EM perpendicular on AD। अब हमें प्रूव करना है, इसके लिए सबूत जुटाने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। कैसे कैसे प्रूफ इकट्ठा करेंगे और इनको प्रूव करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ। सो हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल BDE एंड CED। एरिया के बारे में याद करते हैं, टू ट्राइंगल्स on the same base and between same parallels have equal area। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to area of triangle CED, ECD। और इस एरिया इक्वल होने का रीजन है triangles on the base, same base, triangles on the same base and lying between same parallel, lying between same parallels ये रीजन है। दो ट्राइंगल सेम बेस पे है, सेम बेस इज DE एंड सेम पैरेलल इज DE एंड BC, देयरफॉर द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। नाउ इन दोनों ट्राइंगल को एरिया ऑफ ADE से डिवाइड करेंगे, तो दो इक्वल क्वांटिटी जब सेम क्वांटिटी से डिवाइड होगा देन दैट विल बी इक्वल। Therefore, area of triangle DBE upon area of triangle ADE is equal to area of triangle ECD upon area of triangle EAD। This is assumed to be equation number 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE के लिए DBE बेस DB कंसीडर करते हैं, देन हाइट इज
EM, which is extended. This EM is stands on extended base BD. तो इस ट्रायंगल BDE के लिए अगर हमने बेस BD कंसीडर किया है तो हाइट इज EM. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस विच इज BD, base is BD and height is EM divided by area of triangle ADE. सेम ADE का एरिया बेस इज कंसिडर्ड एज AD एंड हाइट इज EM. 1/2 बेस इज AD and height is EM. Similarly, area of triangle ECD is equal to 1/2 base for this ECD triangle is EC and height is DN. Height is DN. CE into DN upon area of triangle AED is base is AE half into base is AE and height is DN. अब आसानी से आप देख सकते हैं हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल आउट. सिमिलरली EM and EM कैंसिल आउट. RHS में हाफ एंड हाफ गेट कैंसिल आउट एंड DN गेट कैंसिल आउट. सो बच गया जो थ्योरम प्रूव हो गया हमारा. इट इज BD अपॉन AD. BD अपॉन AD इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं. देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू CE अपॉन AE. तो RHS पे भी रेसिप्रोकल करेंगे. दैट विल बी AE अपॉन CE which was to be proved. Therefore, this is the proof of BPT. लिखेंगे hence proved. Hence proved. Theorem 6.2. It is converse of Pythagoras theorem, which is the statement of converse of Pythagoras theorem is a line which divide two sides of a triangle in the same ratio is parallel to third side. Let ABC is a triangle and a line segment joining AB and AC at D and E such that the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC. तो हमें प्रूव करना है DE is parallel to BC. दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हमारे पास गिवन है, गिवन आ ट्रायंगल ABC in which DE intersect AB and AC at D and E such that AD upon DB is equal to AE upon EC. This is given. AD upon DB is equal to AE upon EC is given. तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव DE is parallel to BC. दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. ये प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ
a line segment DE dash which is parallel to BC। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एक DE डैश लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा which is parallel to BC। This DE dash is parallel to BC by BPT। If a line joining the two sides of a triangle is parallel to one of the side, then line segment divide the remaining two sides in the same ratio। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। AE डैश अपॉन E डैश C, दिस इज अकॉर्डिंग टू BPT। कोई लाइन अगर ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल हो और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो दे इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दिस इज गिवन बाय BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो AD upon DB, this implies that from 1 and 2, AD upon DB is same, which are on LHS in both the equation. Then AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C। AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C। तो इसका मतलब हुआ AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। देखने से लग रहा है गलत है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश इज कोइंसाइड विथ E। व्हेन E डैश E पर हो या दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड विथ E, मतलब E डैश और E दोनों सेम ही है। इसका मतलब हुआ कि अगर DE डैश BC के पैरेलल है, पैरेलल टू BC, therefore DE is parallel to BC and hence it is proved। There is an important properties which are given in example number 1 of NCERT book। Example number 1, in a triangle ABC, if D and E intersect AB and AC at DC intersect AB and AC at D and C such that DC is parallel to BC। ये गिवन है, DC गिवन लिखते हैं, गिवन ट्राइंगल ABC in which AD upon DB is equal to AC upon AE upon EC। AE upon EC ये गिवन है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव AD upon AB is equal to AE upon AC, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कंसीडर करें हम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। DE इज पैरेलल टू BC,
तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसका हम रेसिप्रोकल कंसीडर करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा। DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। एंड दो इक्वेशन है LHS RHS, अगर इक्वल है तो इक्वल अमाउंट अगर ऐड किया जाए तो इक्वल रहेगा। देयरफॉर हम दोनों ही LHS और RHS में 1 1 ऐड कर देते हैं। देयरफॉर DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE एंड देन प्लस 1। यहाँ से अगर LCM लें इनका तो 1 अपॉन 1 लिखें। 1 इज मल्टीप्लाइड हेयर DB, 1 इंटू DB इज DB प्लस AD इंटू 1 इज AD, देन DB प्लस AD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू सिमिलरली EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE। अब फिगर में देखते हैं DB प्लस AD दोनों ऐड करके हो जाएगा AB। सो AD AB दिस इम्प्लाइज दैट AB इन दोनों को प्लस करके AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE प्लस EC प्लस करके AC होगा AC अपॉन AE और इसका देन रेसिप्रोकल लिख लें। दिस इम्प्लाइज दैट इनका रेसिप्रोकल AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE अपॉन AC। हैंस प्रूव्ड। In here is exercise 6.2 question number 1 first part and second part. There are two questions given in form of figure. In question number 1 ABC is a triangle, DE is parallel to BC. This DE is parallel to BC. तो हमें इस क्वेश्चन में EC फाइंड आउट करना है। AD गिवन है 1.5, DB is 3, A is 1 सेंटीमीटर। हमें EC फाइंड आउट करना है। तो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट ऑन BPT। अकॉर्डिंग टू BPT अगर ये पैरेलल एक लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल हो तो दिस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो डायरेक्ट हम वैल्यू फिट कर दें। AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज 1 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू अननोन है, फाइंड आउट करना। इनका रेसिप्रोकल करें तो EC अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, 3 अपॉन 1.5। EC अपॉन 1 इज ऑल्सो EC, देयरफॉर EC इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर लगाएं, बचेगा 15, 30 अपॉन 15, 15 2 जा 30। देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए EC 2 सेंटीमीटर निकल रहा है। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, DE इज पैरेलल टू BC, AD हमें फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट करना है, BPT यूज करते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू
AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। सारे वैल्यूज को फीड कर दें यहाँ पर। AD का वैल्यू हमें पता करना है। AD DV इज 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE का वैल्यू 1.8 एंड EC का वैल्यू 5.4। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस डेसिमल को कट कर दें और 18 से 18 3 जा 54 कट रहा है, इट इज 1/3। इस 7.2 को RHS से मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 7.2। इसको कट करें, कैंसिल आउट करें, 3 24 जा 72, देन 2.4, AD is equal to 2.4 is the answer. AD is equal to 2.4 centimeter is answer for this question. This is 2.4 centimeter. Question number 2. There is a triangle PQR in which E and F are, EF is line segment and E and F are point on side PQ and CR. तो हमें डिफरेंट केस दिया हुआ है। केस नंबर 1, PE is equal to EQ is equal to PF is equal to and FR is equal to, ये सारे वैल्यूज गिवन है। इन केस नंबर 1, PE is 3.9, EQ is 3 centimeter, PF is 3.6 centimeter and FR is 2.4 centimeter। इस केस में हमें चेक करना है वेदर EF PQ QR के पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए हमने BPT चेक किया। अकॉर्डिंग टू BPT, PE अपॉन, एक फिगर में देखते हैं हम, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR होना चाहिए। अगर ऐसा आता है कैलकुलेट करके, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इक्वल आ जाए तो दिस EF इज पैरेलल टू QR। केस नंबर 1, सारे वैल्यूज फीड कर दें। PE का वैल्यू 3.9 है अपॉन EQ इज 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF का वैल्यू 3.6 है एंड FR का वैल्यू 2.4 है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रख करके, 0 रख करके पॉइंट को रब आउट कर दें, पॉइंट को हटा दें, तो बचा 39/30 एंड सिमिलरली 36/24। इनको अब कैंसिल आउट करें, 3 से 3 13 जा, 3 10 जा एंड 3 से इनको भी कैंसिल करें, इसको 12 से कैंसिल करें, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। तो दिस रेशियो का वैल्यू इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। सो in this case, PE upon EQ is not equal to PF upon FR. Therefore, in case number 1, EF is not parallel to QR. This is answer for question number first part of question number part में PE upon EQ फाइंड आउट करते हैं। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 4/4.5, 4 को 4.0 लिखेंगे और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 40/45, 5 से कैंसिल करें, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। सो PE अपॉन EQ इज 8/9। सिमिलरली PF अपॉन FR, PF
अपॉन FR इज इक्वल टू 8/9। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब PE अपॉन, देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, और दोनों 8/9 के इक्वल है। देयरफॉर इन दिस केस नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, EF, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, PQ given है 1.28 centimeter, PQ from here to here total length is 1.28 centimeter and this is 0.18 centimeter, therefore EQ is equal to, इस पूरे लेंथ में से विच इज 1.28 सेंटीमीटर, इस लेंथ को PE को सब्ट्रैक्ट कर लें 0.18 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1.10 सेंटीमीटर। EQ इज इक्वल टू 1.10 सेंटीमीटर। इन नेक्स्ट स्टेप PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ PR is 2.56 centimeter and FR is equal to, PF is equal to 0.36 centimeter. This is 0.36 centimeter and PR is equal to 2.56 centimeter. 2.56 सेंटीमीटर में से 0.36 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लें तो बनेगा FR इज इक्वल टू 2.56 minus 0.36 centimeter, then FR is equal to 2.20 सेंटीमीटर। अब हम BPT लगाएं इस फिगर के लिए, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, तो PE का वैल्यू 0.18 है, 0.18 डिवाइडेड बाय EQ हमने कैलकुलेट किया 1.10 कैलकुलेट करें। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट कट जाएगा, सो 18/110 और सिंप्लीफाई करें 2 9 जा 255 जा 100। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है PF अपॉन FR। PF is equal to 0.36 and FR is equal to 2.20। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल को कट कर दें और फिर इनको कैंसिल आउट करें। 4 से 4 9 जा एंड 4 से 4 5 जा 20, 2 बचेगा, फिर से 4 5 जा 20, बोथ गिव्स 9/55, 9/55। इसका मतलब कि देयरफॉर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, देयरफॉर this line segment EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. This is the answer for third part. Question number 3, फिगर गिवन है 86.18। तो इसमें गिवन है कि ML is parallel to BC and LN is parallel to CD। हमें प्रूव करना है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। तो ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ABC in which ML is parallel to BC, in which ML is parallel to BC
तो इस ट्रायंगल में ओनली दिस ट्रायंगल ए बी सी में बीपीटी सोचें कि दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देयरफॉर एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज अकॉर्डिंग टू BPT, basic proportionality theorem, and this equation is supposed to be equation consider triangle ADC. Consider triangle ADC. तो ADC में LN is parallel to CD, तो अकॉर्डिंग टू BPT इस ट्रायंगल में AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। AN upon ND is equal to AL upon LC. This is equation number 2, and this ratio is written according to BPT, basic proportionality theorem. Therefore, from equation 1 and 2, AL upon LC is equal to AM upon MB, and in equation 2, AL upon LC is equal to AN upon ND. Therefore, ये RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2।